So Indian economy on the eve of independence, it was about when we got independence. Means here we talked about year 1947. So till 1947, what was the status of our economy? Means when Britishers left us, तब हमारी economy के अंदर क्या हुआ? And then onwards, when we talk about common goals of 5-year plans, means we are like here we'll be studying कि 1947 से लेकर 1991 तक हम लोगों ने क्या किया. तो हम लोगों ने अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए एंड यूजिंग दोज प्लान्स वी टुक द वर्क ऑफ डेवलपमेंट. सो 1947 टू 1991 व्हाट डिड वी डू, इस चीज को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर है. ओके, एंड थर्ड चैप्टर विल बी 1991 रिफॉर्म्स एंड देन ऑनवर्ड्स आवर जर्नी. और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए. So like just like last year we have been aided with 2 new chapters which were demonetization and GST. So these are also economic reforms. So this is about 1991 and onwards. उसके बाद हमारी economy में क्या क्या reforms आए और economy की क्या situation है. So this is how we are continuously studying about the development experience of India. So till 1947 or on the eve of 1947, what did we identify that what was the status of agriculture, what was the state of industries, and whether service sector was there or not, and what was the occupational structure of people, poverty status of people. तो इस तरह से करके हम लोगों ने खूब सारी चीजें जो है वो पढ़ी. Now we are moving ahead in this journey where now we will be talking about that India has got independence, and let's see we have to look forward for the development goals कि अब हम लोगों को कंट्री के साथ आगे क्या क्या करना है ना. As in we see कि हमने ये कंक्लूड किया कि 1947 में when Britishers left us, our economy was not in very good situation है ना. It wasn't in like it wasn't like growing or बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति जो है वो नहीं थी. तो अब हम लोगों को प्लान करना है कि हाउ वी कैन मेक हाउ वी कैन अश्योर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. ये चीज हमको देखनी है. तो हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट से जो है वो शुरू करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. ओके, सो सेकंड पार्ट वी आर मूविंग इन नाउ. इंडिया आफ्टर 200 years of British rule, when they left us on 15th August 1947, finally we got freedom on the date. So what we see here is what needed was to rebuild the backward stagnant Indian economy. This was very 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 necessary to rebuild it. Okay, because we have identified that till independence we were sort of stagnant economy जो तरक्की नहीं कर रही थी, growth रुकी हुई थी. Okay, and what were our goal was to lift India to become a developed economy. So this was the goal. So this was needed. Then talking about few things, क्या क्या चीजें हमने किया, तो उसके लिए हमको कुछ समझने की जरूरत है. One is types of economic system, economic planning. Okay, these were the 2 challenges कि किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया जो है वो अडॉप्ट करे, और इकोनॉमिक प्लानिंग में भी क्या क्या चीजें इंडिया को करनी है. सो दीज वर 2 थिंग्स जहां इंडिया को सोचने की जरूरत थी. एंड ऑफ कोर्स इंडिया वाज थिंकिंग. नाउ talking about types of economy, so in class 11th also we have studied about capital economy, socialist economy, and third is mixed economy. So now you have to tell me India is which economy? Mixed economy. India is which economy? Mixed economy. Okay, why India is mixed economy? Like how we can say India is mixed economy? सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है अपने पास. इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. ओके, अभी क्या होगा, अभी जिसको भी बोलना होगा ना वो हैंड रेस करेगा और उसके बाद में आई विल कॉल द नेम एंड देन विल स्पीक. ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सौम्य. यस सौम्य. सर इंडियन इकोनॉमी जैसे कि उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था. ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. यस खुशबू.
सर कैपिटल इकोनॉमी तो इसलिए क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड है हमारे यहाँ, और सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का सब जगह रूल है हर चीज पे इकोनॉमी में। Okay. Anyone else would like to answer? No one? Okay. Who will tell me what is capitalistic economy? What is capitalistic economy? Private ownership. Private ownership. This is one point. Very good. Khushbu? प्राइवेट ओनरशिप सर, लैंड के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप होना। केवल लैंड के ऊपर होती है या और भी चीजों के ऊपर होती है? सर हर चीज खुद की होगी, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। सर ऑल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, उसमें गवर्नमेंट रोल बहुत कम होता है। वेरी गुड। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लाइक गवर्नमेंट्स डू नॉट इंटरफेयर? सर टैक्सेस और इसमें भले इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन बाकी नहीं होता। टैक्सेस इन लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर में तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, बट मार्केट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्या ये हम कह सकते हैं? यस सर, डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट दी टैक्सेस एंड ऑल। ओके, ये बात होगी, ठीक बात है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सब मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। कोई एग्जांपल है दुनिया में ऐसा जिसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है? रेलवेज। हाँ, रेलवेज नहीं, कंट्री का एग्जांपल। Any country where socialist economy is there and the whole country is in the hands of government. सर यूएसए में सारा गवर्नमेंट के हाथ में या यूनाइटेड प्राइवेट के स्टेट्स हाथ ऑफ में? अमेरिका। अमेरिका में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, लोग कुछ भी नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। नो सर, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ नहीं कर सकते लोग। सर जो है ना 1991 से पहले जो यूएसएसआर के अंडर थी, उस कुछ कंट्रीज हैं उसमें से जो शायद सोशलिस्ट है। कुछ कंट्रीज है जो शायद सोशलिस्ट है। यूएसए बोल रहे हो, यूएसएसआर बोल रहे हो? हाँ सर, यूएसएसआर के अंदर जो कंट्रीज थी कुछ उनमें से। सो टॉकिंग अबाउट, अगर हम रशिया की बात करते हैं, क्या रशिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एज ऑफ फॉर नाउ? रशिया इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? सर नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट है? यस सर। या डिक्टेटरशिप है वहां पर? सर वहाँ पे तो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या किंग के कंट्रोल में? यस सर, किंग के कंट्रोल में ही है। तो किंग इज गवर्नमेंट? नो सर, किंग इज इलेक्टेड बाय पीपल। गवर्नमेंट हो गया ना। नो सर, तो वो अलग हो जाएगा ना। जैसे एक कोई कंट्री हो जहां सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, एक कोई कंट्री हो जहां सारा कंट्रोल राजा के हाथ में हो, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात? सर क्यूबा। नहीं, पहले इसका आंसर करो, दोनों एक ही बात है क्या? राजा के हाथ में No, हो या sir. गवर्नमेंट के हाथ में, डिफरेंस है ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर किसी अकेले के हाथ में तो उसकी मर्जी है वो कानून बन जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट हैज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा अपने से थोड़ी क्या, राजा जैसे नींद में उठे, राजा की मर्जी हुई ये कर दो, वाह भैया वो कर दिया। बट गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा हुई कि मेरे को तो ये करना है तो ये हो जाए? प्रधानमंत्री इतना इंडिपेंडेंटली कुछ भी डिसीजन लेकर काम करा सकता है क्या लोगों से? बताओ। नो सर, नॉट पॉसिबल। Okay, so there is difference between
कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ऑफ किंग। जो कंट्रोल ऑफ अ किंग है उनको तो फिर वो तो दायरे में नहीं आते टेक्निकली, वो तो ऐसी कंट्रीज हो जाती है जहां पर डिक्टेटरशिप होती है, या फिर ऐसी कंट्री जो जो भी कुछ भी हो सकता है, क्लोज इकोनॉमी भी हो सकती है, जैसे नॉर्थ कोरिया यूज्ड टू बी और क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर से कुछ भी ट्रेड नहीं करती थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो ना। सर क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा में क्या सिस्टम है बताओ। सर पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल में है। पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब देखो इसमें एक चीज ये भी Yes, समझेंगे, sir. गवर्नमेंट का कंट्रोल किन किन चीजों पर है। जैसे इंडिया में मुझे बताओ, इंडिया में जूते बनाने की फैक्ट्री पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है? नो सर। नहीं है। पेट्रोल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है? पेट्रोल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है? यस सर। पेट्रोल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या? यस सर। पेट्रोल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सर रेलवे पे? यस सर। और स्कूल्स पर? सर कुछ पे है कुछ पे नहीं है। कुछ पर है कुछ पे नहीं, मतलब प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी। तो इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक बात है। इसको हम लोगों ने Yes, क्या बोला sir. था, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला इसको, है ना। व्हेन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ आर बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, तो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो टेक्निकली, जैसे यूएसएसआर चाइना की हम बात करते थे, दे यूज्ड टू बी सोशलिस्ट इकोनॉमी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, देयर आर पीपल हु आर कमिंग विद प्रेटी गुड आइडियाज। अब सारी चीजें इस तरह से हो रही है कि अब धीरे धीरे जो है वो इकोनॉमीज सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स्ड की तरफ स्विच कर रही है। लाइक इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ स्विच कर चुका है पूरी तरह से। इंडिया इज, जो बोला जाता है कि इंडिया इज बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों बोला जा रहा है बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी? क्योंकि चाइना जो है वो अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी के दायरे में ज्यादा आती है, और यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा आती है। तो तीन ही तो रैंकिंग है, यूएस, चाइना एंड इंडिया। इंडिया इज ऑन नंबर 3 है ना, एज पर नॉमिनल जीडीपी। तो तीसरे नंबर पर है, और उसको क्या बोला गया, इट इज बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? जो इससे पहले दो है, एक जगह सोशलिस्ट एक जगह कैपिटलिस्ट। लेकिन चाइना में भी अब धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी का बोलबाला होता जा रहा है, क्या ठीक है। चाइना जो है वहां पर भी अब धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी आती जा रही है, यानी वो भी कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल, बट स्टिल पूरा जो कंप्लीट जिसको हम लोग बोलते हैं वो अभी भी नहीं है। सो दिस इज वन बिग रीजन। अब क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, आपके पास 11th की बुक होगी अभी, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमको समझना थोड़े से ज्यादा जरूरी है ना। 11th की बुक में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों क्या होते हैं और इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कब किस इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक बोलेंगे, किसको सोशलिस्ट बोलेंगे, किसको मिक्स्ड बोलेंगे, ये आइडिया हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो आपको, आपके लिए एक टास्क है, द टास्क इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड, है ना, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 कंट्रीज ऑफ ईच। 10 कंट्रीज लिखो, तीनों की, तीनों तरह की। फिर उसके बाद में उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या है, ठीक है। कोशिश करना 10, नहीं मिले तो कोई बात नहीं मिले तो छोड़ दे। अच्छा, सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, ये बताओ। सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती होगी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक या मिक्स्ड? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट फॉलो करती होगी सबसे ज्यादा। अच्छा, आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, वेरी गुड। तो कैपिटलिस्ट से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स भी नहीं है, सोशलिस्ट भी नहीं है। क्या इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर होता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब मार्केट खुद अपनी रेट्स डिसाइड करेगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, ओपन मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाए तो हमारा भी जीडीपी ज्यादा हो जाएगा, हमारा भी डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा? बताओ। टेल मी नो क्विक। सर, सर इंडिया का तो नहीं हो पाएगा। इंडिया का नहीं नो हो पाएगा? सर। क्यों नहीं होगा? व्हाट योर आर्ग्यूमेंट्स? सर क्योंकि जो इंडिया का जो मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। और बताओ, और कुछ बताओ। अच्छा, सर इंडिया क्वेश्चन ये है, डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन ये है कि अगर हमको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, या बिना कैपिटलिस्ट बने मिक्स्ड इकोनॉमी रहते हुए भी हम डेवलप्ड कंट्रीज कहला सकते हैं? बताओ। सर मिनिमम स्टैंडर्ड भी इंडिया का नहीं है तो कैपिटलिस्ट तो हो नहीं पाएगा ना। नहीं नहीं, हो नहीं पाएगा, पर क्या हम चाह रहे हैं